Relative frequency theory of probability. Classic approach is useful for solving problems involving game of chances, throwing dice, coins, etc. But if applied to other type of problems, it does not provide answers. For instance, if a man jumps from a height of 300 feet, the probability of his survival will not be 50%, since survival and death are not equally likely in this case. Similarly, the prices of shares of a joint stock company have three alternatives, that is, the prices may remain constant, or prices may go up, or prices may go down. Thus, the classical approach fails to answer question of this type. If we toss a coin 20 times, the classical probability suggests that we should have had 10 times. But in practice, it may not be so. These empirical approach suggests that if a coin is tossed a large number of times, say 1000 times, we can expect 50% heads and 50% tails. For Voronezh explained, if the experiment be repeated a large number of times under essentially identical conditions, the limiting value of the ratio of the number of times the event happens to the total number of trials of the experiment as the number of trials increases indefinitely is called the probability of the occurrence of A. Thus, P A is equal to LIM M upon N. ठीक है, आगे बढ़ो। The happening of an event is determined on the basis of past experience or on the basis of relative frequency of success in the past. For instance, a machine produces 10% unacceptable articles of the total output. On the basis of such experience or experiments, we may arrive at that. First, the relative frequency obtained on the basis of past experience can be shown to come very close to the classical probability. For example, as said earlier, a coin is tossed for 6 times. We may not get exactly 3 heads and 3 tails, but the coin is tossed for larger numbers of times, say 10,000 times. We can expect heads and tails very close to 50%. Second, there are certain laws according to which the occurrence or non-occurrence of the event take place. Posterior probabilities, also called empirical probabilities, are based on experience of the past and an experiment conducted. Thus, relative frequency can be termed as a measure of probability, and it is calculated on the basis of empirical or statistical finding. For instance, if a machine produces 100 articles in the past, two particles were found to be defective, then the probability of the defective articles is 2 upon 100 or 2%. देखो, वो ये कहता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। कल हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने डाइस का किया, हमने कार्ड्स का किया, हमने कॉइन का किया। वो सब सर्टन थिंग्स हैं कि हाँ ठीक है, हम एक कॉइन फेंकेंगे तो हेड या टेल आएगा, कार्ड फेंकेंगे, कार्ड लेंगे तो 52 है, उसमें कौन कौन से कार्ड हैं हमें पता है, या हम एक डाइस लेंगे तो उसमें 6 तक नंबर होते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, वो क्लासिकल अप्रोच में नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी लेनी पड़ेगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कब निकालते हैं, जब हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा होता है। आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा है कि हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, कितने बच्चे इतने मार्क्स के हैं, कितने बच्चे इतने मार्क्स के हैं। तो अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हो। अब फॉर इंस्टेंस अगर एक पर्सन 300 फीट से जंप करता है तो हम कह सकते हैं कि चांसेस क्या हैं उसके बचने के, 50% है या नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते। सिंस सर्वाइवल और डेथ दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये इक्वली लाइकली तो नहीं है ना, सर्वाइवल और डेथ सेम तो नहीं हो सकते ना। सिमिलरली किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अगर वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में तो उसका प्राइस रिमेन भी सेम भी रह सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी, इस टाइप के आंसर्स आपको क्लासिकल अप्रोच नहीं दे पा रहा था, उसके लिए हमें रिलेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। इफ वी टॉस ए कॉइन 20 टाइम्स देन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी तो हमें ये कहती है कि 10 बारी हेड आएगा, 10 बारी टेल आएगा।
बट क्या ये ठीक है कि 20 बारी आप कॉइन फेंकोगे तो 10 बारी हेड और 10 बारी टेल ही आएगा? होता है ऐसा कभी? एक बारी तो ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा, बट ये तो नहीं है ना कि 20 बारी डालेंगे तो 10 बारी हेड आएगा 10 बारी टेल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम 1000 बारी डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि 500 बारी टेल आए 500 बारी हेड आए। हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है, और वो भी उसके आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो उसके लिए जो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इनडेफिनेटली हमारे ट्रायल्स जब बढ़ते चले जाते हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आती है कि कितनी बारी आप ट्रायल कर रहे हो उतनी बारी आपको m/n करना है। एक ट्रायल किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। जैसे मान लो आपने एक बारी को 20 बारी अब इसने का कॉइन फेंकना है, तो पहली बारी आपने कॉइन फेंका 1/2, दूसरी बारी फेंका 1/2, तीसरी बारी फेंका 1/2, तो 20 बारी है ना, 20 बारी करना पड़ेगा आपको। दैट इज प्रोबेबिलिटी। The happening of event is determined on the basis of the past experience। अब इन्होंने मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है कि पास्ट में हम कितनी बारी उस इवेंट में सक्सेस हुए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो on the basis of such experience we may arrive that relative frequency obtained on the past experience। पहला पॉइंट ये है आपका कि relative frequency हम पास्ट के बेस पे लेते हैं, और वो जो है वेरी क्लोज टू क्लासिकल प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है पर सेम नहीं हो सकती। वो कहता है जैसे आपने 6 बारी कॉइन फेंका तो जरूरी नहीं है कि आप 3 बारी हेड लो 3 बारी टेल लो, लेकिन आप 6 बारी के एक्सपीरियंस को हैंडल कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बारी हेड आ रहा है कितनी बारी टेल आ रहा है। पर 10,000 बारी फेंकना है तो वो आप एक्सपेरिमेंट खुद से नहीं कर सकते। आपको उसको अगर प्रोबेबिलिटी लेनी है तो हम ये कह सकते हैं कि वेरी क्लोज हो सकता है वो 50% के, पर एग्जैक्ट 50% होगा या एग्जैक्ट क्या होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा। अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट टेक प्लेस। कुछ सर्टन लॉ है जो अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट पे होते हैं। जैसे अब इसने बोला कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके पास 2 आर्टिकल्स डिफेक्टिव आ रहे हैं और 100 आर्टिकल आपने बनाए हैं, तो वो तो एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा ना, उससे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते उसकी। तो फिर वो 2 जब डिफेक्टिव होंगे तो आपकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आप तभी सेट कर पाओगे 2/100। लेकिन आर्टिकल प्रोडक्शन से पहले तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं सेट कर सकते ना। एक कॉइन को टॉस करने से पहले ही हम बता सकते हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस को उछालने से पहले ही हम बता सकते हैं कि 6 आएगा। लेकिन प्रोडक्शन से पहले हम नहीं बता सकते कितने डिफेक्टिव होंगे। तो कम से कम एक बार आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप आगे के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी सेट कर सकते हो। That is the difference between classical theory और relative frequency theory। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कंडीशंस में नॉट रिमेन एसेंशियली होमोजेनियस। जैसे मैंने कहा आपने एक बारी प्रोडक्शन करी और उसमें से 100 में से 2 डिफेक्टिव निकले, तो आपने प्रोबेबिलिटी 2/100 उसकी बना दी, 2% बना दी और सेट कर दिया एक टारगेट की 2% डिफेक्टिव होते हैं। बट हमेशा कंडीशन सेम नहीं रहती। हो सकता है आप दूसरी बारी प्रोडक्शन करो तो 3 डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है तीसरी बारी करो तो एक भी डिफेक्टिव ना हो, तो वो होमोजीनियस नहीं रहती। जबकि क्लासिकल में होमोजीनियस रहती है, क्योंकि कॉइन आप चाहे एक बारी फेंको चाहे 50 बारी फेंको या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन इसमें आपकी कंडीशन सेम नहीं रहती, आइडेंटिकल नहीं रहती। चाहे जितने आपके आइडेंटिकल लार्ज नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप एक्सपेरिमेंट्स की करोगे, हमेशा वो सेम नहीं रहेगा। Relative frequency may not attain a unique value no matter lower however n may be। जितना भी n आपका बड़ा हो, जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रेपिटेशन हो, relative frequency जो है वो यूनिक नहीं हो सकती है। Probability A defines can never be obtained in practice। We can only attempt to get close estimate of probability A by making n sufficiently large। हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली obtain नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशंस है। अब इसका एग्जांपल है, और एग्जांपल आप में से पढ़ेगा, सुने ना, आप पढ़ो एग्जांपल को। Yes, ma'am. An urine
contain 8 white and 3 red balls. If 2 balls are drawn at random, find the probability that first both are white, second both are red, and third one is of each color. तो देखो आपने 8 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स ली, टोटल 11 बॉल्स हो गई आपकी, एक बॉल में डाल दिया आपने, ठीक है। अब आपने दोनों 2 बॉल्स निकाली और पहली प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि दोनों व्हाइट होंगी। तो व्हाइट देखो, पहले तो हम टोटल नंबर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे, वो होगा आपका 11C2, क्योंकि 11 में से 2 निकालनी है ना हमने, तो ये आ गया आपका 55। ये क्लियर है आपको? कल बता दिया था आपको कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, कर लोगे बच्चे? यस मैम। अब Yes, आगे ma'am. अगर किसी को नहीं समझ आया है तो बोल सकते हो, मैं बता भी दूंगी दोबारा। मैम एक बार बता आगे दो। देखो बेटा, फैक्टोरियल मैंने आपको कल बताया था कि इसका फॉर्मूला मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये फैक्टोरियल 12C3 कैसे सॉल्व करते हैं हम। फैक्टोरियल 12 नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 9। तो हम ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, जो 12 है उसको हम लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। इसको 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। और जो ये 12 माइनस 3 9 आएगा, उसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल वापस में कट जाएगा ऊपर और नीचे, और जो रह जाएगा इसको 10 से 10 कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये है 23 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 23 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 20। यहाँ से क्लियर हो रहा है ज्यादा। 23 को हम लिखेंगे 23 इंटू 22 इंटू 21, बाकी 20 को हमने फैक्टोरियल में डाल दिया। नीचे 3 को खोला, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ 23 माइनस 3 20 हो गया। अब ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल 20 आपस में कैंसिल हो गए, और बाकी आपका रहेगा 23 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन 3 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हुई आपको ये बात? यस मैम, थैंक यू मैम। गुड। आप बच्चे आज ना ये सारे एग्जाम्पल करके सब लोग अपनी अपनी पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है? वही आपकी मैं इंटरनल असेसमेंट बना दूंगी फिर, ये देख लो। ओके मैम। अब आपका फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 हो गया। नीचे आपका फैक्टोरियल 2 को आप 2 इंटू 1 करोगे, और नीचे इंटू फैक्टोरियल 9 कट जाएगा, और ये आपका 55 आ गया। अब पहली आपकी जो फेवरेबल है बोथ आर वाइट। वाइट है आपकी 8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 8C2। तो 8C2 को आप सॉल्व करोगे सेम उसी मेथड से, तो आपका 28 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 28 अपॉन 25। ये हो गया क्लियर आपको? यस मैम। हाँ। अब बोथ आर रेड के लिए क्या करेंगे आप बताओ, जिसकी टर्न है पढ़ने की वही बताएगा। कौन पढ़ रहा था आप में से? मैम सुनैना। सुनैना, आप बताओ रेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लगाओगे आप? रेड के लिए कैसे निकालोगे? मैम 3 बॉल्स ले लेंगे उसमें, 8 हाँ, जहाँ क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे? 3 इंटू 2 3C2 क्या लगाओगे? 3C2। 3C2। तो देखो 3C2 को सॉल्व करोगे आपका 3 आएगा, और प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 55 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस एक बात मैम। नोट कर लो आप, जब जब ऊपर वाले और नीचे वाले में 1 का फर्क होता है ना, तो वही वैल्यू आ जाती है 3। और इसी तरह जब हमने किया था ना 3C1, तो भी 3 आएगा। जब नीचे 1 हो तो भी वही वैल्यू आती है, और जब ऊपर और नीचे के बीच में 1 का डिफरेंस हो तो भी वही वैल्यू आती है। अब लास्ट है एक रेड और एक व्हाइट। तो रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 3C1, व्हाइट की भी 8C1। दोनों को आपने मल्टी, देखो 1 1 आया ना नीचे, तो ऊपर वही वैल्यूज आ गई ना 8 और 3। देख रहे हो ना आप? यस मैम। यस मैम।
तो इस तरह अगर मैं 8C7 लिख दूं तो भी वो 8 ही होगा। ठीक है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो 8 × 3 24 आ गया और प्रोबेबिलिटी आपकी 24/25 आ गई। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस मैम। अब इसी तरह आपका 7th एग्जाम्पल है। वो कहते हैं 1 से 100 तक आपने टिकट ली, उसको आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है। देयर आर वेल शफल्ड टिकट इज ड्रॉन ऑन रैंडम, एक टिकट निकालनी है आपने। तो प्रोबेबिलिटी टोटल एग्जॉस्टिंग तो 100 रहेंगी। अब आपको इवन नंबर निकालना है। इवन अगर 100 नंबर है तो उसमें से 50 इवन होंगी हमारी, है ना? तो फेवरेबल 50 हो गई, तो 50/100 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये बात क्लियर है? फर्स्ट हो गया क्लियर? यस यस मैम। मैम। अब वो कहता है 5 का मल्टीपल नंबर ऑफ 5 और 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल कितने होते हैं 100 तक? 20 होते हैं। तो वो 20/100 आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यस मैम। और ग्रेटर देन 70 100 आ गई। स्क्वायर कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं। 9 16 1 का 2 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर ना 100, तो 10/100 हो गई। हो गया अभी क्वेश्चंस? हाँ जी, मुझे बच्चे जवाब नहीं देते आप लोग। ये 12 एग्जाम्पल मुझे आज के असाइनमेंट में पूरे नहीं है। बोलो, भेजोगे पीडीएफ सब लोग? हाँ जी हरसिमरन। यस मैम। जो नहीं भेज सकता वो हैंड रेज करे, और चलो जो भेजेगा वो हैंड रेज करे। जो 12 एग्जाम्पल्स की पीडीएफ बना के मुझे भेजेगा वो लोग हैंड रेज कर लें। कोई भी नहीं भेजेगा? हरसिमरन आप मैम ये बुक कह रहे थे, बोलो मुझे। बोलो मैम हरसिमरन बुक कह रहे थे। नहीं है क्या उधर? बेटे बुक तो मैंने पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में, आपको मिली नहीं? मैंने ग्रुप में मैम पीडीएफ फोन। भेजी थी। हाँ, मैम कोई क्या ना कह रहे भेज हो? देंगे। मैम भेज देंगे पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ बना के सब भेजनी है। एड्रेस करो सब लोग जो पीडीएफ भेजेंगे। और अगर आपको पीडीएफ अलग से चाहिए इसकी, तो मैं वो भी भेज दूंगी। तो मैंने बुक भेजी हुई है सबको। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग कुछ यस मैम। तो फिर हैंड क्यों नहीं raise कर रहे? मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। बेटा मैं ये क्योंकि जो लोग भेजेंगे 12 एग्जाम्पल अब पीडीएफ ग्रुप क्लियरली में नहीं वो लोग समझ में आ हैंड रहा आप रेज क्या करें। कह रहे हो। मैम आवाज क्लियर आ रही है। ब्लिंक कर रही है मैम आपकी आवाज। हर्षिमरन आप बताओ उनको मैं क्या, हाँ जी मैम। आप बताओ मैं क्या कह रही हूँ, उनको समझ नहीं आती। मैम ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਮੈਮ ਨੂੰ हैंड रेज कर दो। मैम एक बार फिर से आप बुक का पीडीएफ भेज दो। मैं आपकी भेज रही हूँ। साइमन फिर से रिपीट करो, अभी बहुतों के हाथ नहीं ऊपर हुए। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ हैंड रेज कर दो। पीडीएफ बनानी है ये भी बताओ।
ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜੇ 12 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨੂੰ। पर नहीं है आपको, ये लो मैं दोबारा ग्रुप में भेज दूँ। और मैं लिख भी रही हूँ। ग्रुप में भी लिख दिया मैंने अब। गुड। गगन नहीं भेजेगी, मनीषा भी नहीं भेजेगी। मनीषा, मनीषा यस मैम। आप नहीं भेजोगे पीडीएफ, काम नहीं करोगे? हाँ जी गगनदीप, यस मैम। भेजोगे नहीं पीडीएफ? मैम कल भेज देंगे, अज ना ਅਸੀਂ स्कूल मतलब ट्यूशन जाना है। कोई गल नहीं, कल भेज दियो, एड्रेस तक करो ना। शर्म। हाँ जी गगनदीप, मैम पढ़ो बच्चे। मैम Theorems of probability। मैम प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हाँ जी मैम स्क्रीन नहीं क्लियर हो रही। दोबारा कर। मनीषा आपको हो रही है स्क्रीन क्लियर? यस मैम। Theorems of probability. We have studied what probability is and how it can be measured. We dealt with the simple problems. Now we shall consider some of the laws of probability to tackle complex situations. There are two important theorems. First, the addition theorem. Second, the multiplication theorem. Addition theorem. The simplest and most important rule used in the calculation is the addition rule. It states if two events are mutually exclusive, then the probability of the occurrence of either A or B is the sum of the probabilities of A and B. Thus, P bracket A or B bracket close is equal to bracket P plus B bracket close is equal to P bracket A bracket close plus P bracket B when A and B are mutually exclusive. देखो सबसे पहले हम थ्योरम्स कहाँ लगाते हैं। अभी तक हमने दो तरह की प्रोबेबिलिटी पढ़ी। क्लासिकल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस मैम। हाँ देखो, अभी तक हमने पढ़ी क्लासिकल थ्योरी और रिलेटिव थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी हम तब करते हैं जब हमारी प्रोबेबिलिटीज पहले से सर्टन होती हैं, हमें पता होता है, जैसे डाइस, कॉइन एंड कार्ड्स। रिलेटिव थ्योरी हमने पढ़ी तब करते हैं जब हमें कुछ हिस्ट्री के बेस पे प्रोबेबिलिटी हमें प्रैक्टिकल करके बनानी पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम उससे भी ज्यादा आगे चलें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, सिचुएशन बिजनेस में भी, जहां हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती हैं। उन्हें टैकल करने के लिए हमें इसकी थ्योरम्स करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी की, या तो आपकी प्रोबेबिलिटी एडिशन से निकलती है या मल्टीप्लिकेशन से निकलती है। तो सिंपल जो है, सबसे पहले एडिशनल रूल है कि अगर एडिशनल रूल की दो कंडीशंस हैं। पहला, वैसे कंडीशन पहली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों इवेंट क्या होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जो एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते। और दूसरा है कि ए और बी होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए। तो एंड आएगा वहां अलग हो जाएगा, ए और बी। अगर आप सेट थी तो आपने भी पढ़ा होगा ए और बी। अभी हमने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं,
दोनों को ऐड करते हैं तो पी ए और बी एक कंडीशन। फिर से आप रिपीट करोगे, किसने पढ़ा है? दो कंडीशन कौन सी है? गगन, सॉरी, मनीषा ने पढ़ा। मनीषा, क्या दो कंडीशंस है बेटा एडिशनल रूल की? मनीषा, 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 मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? गगन, यस मैम। आप बताओ क्या दो कंडीशंस हैं बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की और एडिशनल थ्योरम की? मैम पी ब्रैकेट ए और बी। ना मैंने कंडीशंस पूछी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अब मैं किसी से भी पूछूंगी, ध्यान से सुन लो। एडिशनल थ्योरम की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा, ए और बी अकरेंस होनी चाहिए, या ए या बी, दोनों नहीं होने चाहिए, या तो ए होगा या बी होगा। तो दो कंडीशंस हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ए और बी। तो अब बताइए सुनैना, बताइए क्या दो कंडीशंस हैं? कीर्ति, दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और जो occurrence है वो ए और बी होनी चाहिए, ए एंड बी हाँ नहीं होनी चाहिए, ए और बी ही होनी चाहिए। हाँ, ए और बी होनी चाहिए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी पी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आप ही बड़ो कीर्ति ये क्वेश्चन। A bag contains 4 white, 3 black, and 5 red balls. What is the probability of getting a white or a red ball at random in a single random draw? Solution. देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि उसने हमारे से क्या प्रोबेबिलिटी पूछी, व्हाइट और रेड। तो पहली कंडीशन पूरी होगी हमारी ए और बी वाली, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है कीर्ति, आपसे पूछ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहली एक कंडीशन पूरी हो गई ए और बी वाली, व्हाइट और रेड। Yes, ma'am. दूसरा वो कह रहा है एक ही ड्रॉ में आपने दो निकालनी है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा तो है नहीं कि व्हाइट निकलेगी तो रेड नहीं निकल सकती, दोनों अलग अलग है ना दोनों। Yes, तो ma'am. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगी। तो आपकी Yes, पी ma'am. ए और बी निकलनी है। पी ए मतलब पी व्हाइट। पी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कितनी है? 4 + 3 + 5, तो 12 होगी। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आ 12. जाएगी आपकी 4/12। और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चे बताओ? 5/12. तो दोनों को क्या करेंगे हम अब? क्या करेंगे दोनों को? Additional Add. theorem लगाएंगे. ऐड कर देंगे। एडिशनल थ्योरम है ना, 5/12 प्लस 4/12, तो 9/12 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है? अब वो कह रहा है कि जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, देखो आप सेट थ्योरी को याद करो। अगर आप सेट थ्योरी को याद करोगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। व्हाइट बॉल्स और रेड बॉल्स दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सेम नहीं है। अगर आपके इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो जो कॉमन होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। अब देखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, जो उसमें कॉमन होगा। जैसे ये देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, कीर्ति पढ़ो आप ही। मैम स्क्रीन मूव नहीं हुई. 14 एग्जाम्पल नहीं दिख रहा? नहीं मैम 13 ही दिख रहा है मेरे को. अब दिख रहा है? नहीं मैम 13 ही चल रहा है. दोबारा अब शेयर दिख कर, रहा मैम. दिख रहा मैम. मैं फिर से शेयर कर रही हूँ इसको। हो रहा है शेयर? हो गया शेयर बच्चे? मैम पेज नहीं दिख रहा. अब दिख रहा है मैम. हाँ बोलो बेटा, हम पढ़ो पढ़ूं? 14 एग्जाम्पल। हाँ जी। Two students X and Y work independently on a problem.
The probability that A will solve it is 3 by 4 and probability that Y will solve it is 2 by 3. What is the probability that the problem will solve? देखो अब यहाँ पर ये Solution. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि अगर x सॉल्व करेगा तो y नहीं करेगा, y करेगा तो x नहीं करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही सॉल्व करें उस चीज को। हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, ma'am. तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, जहां पर और की जगह एंड आ जाता है वहां हम दोनों को लेते हैं और वहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है, जो अभी हम आगे करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है कि x सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, y सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और दोनों सॉल्व करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 11/12 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, Yes, ma'am. ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? आप में से किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. किसी भी No, स्टूडेंट को अगर ma'am. डाउट है तो बेटा हैंड रेज करो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। अल्टरनेटिव मेथड ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ना तो एक्स करता है ना वाई करता है। तो अब अगर एक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो उसकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी का संबंध होता है ना सक्सेस और फेलियर का, मैंने आपको कल बताया था। तो अगर वो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो ना सॉल्व करने की 1/4 हो जाएगी। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो ना सॉल्व करने की 1/3 हो जाएगी। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और जब नहीं हो रही है तो फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल सॉल्व एंड वाई फेल टू सॉल्व इट। इसको अल्टरनेटिव वाले को छोड़ दो, उनको नीचे वाला अल्टरनेटिव जो मैंने बताया वो देखो आप, 1/4 1/3 1/12 आ गया, और उसको 1 में से माइनस कर दो। ये बीच वाले दोनों अल्टरनेटिव आपने नहीं करने हैं, आपने सिर्फ यही करना है कि ए भी सॉल्व कर लेता है, बी भी सॉल्व कर लेता है, माइनस दोनों सॉल्व कर लेते हैं। या फिर ये वाला मेथड जो मैं कह रही हूँ कि मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बोलो बेटा। मैम पीडी कर दो, दोबारा से क्लियर नहीं बोलती आई। हूँ, थोड़ा माइक पास करके। पीडीएफ क्लियर नहीं है? मैम मैम पीडीएफ आपकी क्लियर है, आवाज आपकी क्लियर। वॉइस थोड़ा बड़ा क्लियर करूँ इसको? नहीं है। एक मिनट मैम बेटा, एक पीडीएफ मिनट। क्लियर है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब ठीक है? Ma'am, your voice is not clear. ओके बेटा, अभी दोबारा बोलती हूँ मैं, एक मिनट। अब आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड तो यही फॉर्मूला आपने याद करना है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, की दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं, वो माइनस कर दो। दूसरा आपने अल्टरनेटिव काट दो, इसको नहीं करना है आपने, तीसरे को भी काट दो। चौथा जो लिखा हुआ है वो कर सकते हैं हम, कि ना तो ए सोल्व कर पाता है ना बी सोल्व कर पाता है। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल। विजिबल नहीं है स्क्रीन? यस। देखो है, नो मैम। किसी को भी नहीं नजर आ रही स्क्रीन? और Ma'am, विजिबल। show हो रही है अभी। हाँ जी, Ma'am, हो रही है show. अभी दिख रही है मैम। किसको नहीं दिख रही?
बोलो बेटा, दिख रही है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो अगर हम दूसरा मेथड लेते हैं कि दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसको देखो, अगर वो 3/4 है कि वो करता है, तो 1/4 होगी कि ए नहीं कर पाता, एक्स सॉरी। और अगर y प्रोबेबिलिटी सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो उसके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो फिर दोनों ही सॉल्व ना करें, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाती है। तो हम 1 में से 1/12 माइनस करेंगे, तो 11/12 उसकी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन और लास्ट वाली ऑप्शन, ये दोनों तरीके आप कर सकते हो, बीच वाले दोनों मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये दूंगी माइक बोलने के लिए। अब आप में से जिसने आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो कौन है? हर्षदीप। हर्षदीप और Yes, ma'am. आप पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट को, 15 एग्जाम्पल को। मैं अटेंड कर रही हूँ। मैम स्क्रीन हाँ जी, क्लियर नहीं दिख रही। मैम हाँ जी, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। आप में से कोई वॉलंटियर है जो पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो बेटा। Three events A, B, and C are mutually exclusive, equally likely, and exhaustive. What is the probability of complementary of event A? देखो पहले तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसका वो ए बी सी वाला नहीं रहेगा, सिर्फ हमने तीनों को ऐड करना है। ठीक है, और वो एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव क्या होता है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है। तो उन तीनों का सम भी आपका 1 आएगा। तो तीनों का इक्वली लाइकली है, तो तीनों इक्वल हो गए, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो जब इन तीनों का सम 1 है, तो हम सबको पी ए लिखते हैं, वो इक्वल है। तो 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी 1/3 आ गई। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, बी भी 1/3 आ जाएगी, सी भी 1/3 आ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए बार, इसने लिखा नहीं है ऊपर, एक के ऊपर बार लगेगा, ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगी, 2/3। ये क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा जिसमें कोई निकालनी नहीं है आपको प्रोबेबिलिटी, सिर्फ दिमाग लगाना है। वो कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इक्वली लाइकली है, Okay, तीनों ma'am. इक्वल। हाँ जी, बोलिए। Yes, ma'am. देखो मान लो आपके बॉल में 3 बॉल्स हैं, रेड एक व्हाइट और एक येलो, तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। ठीक है, Yes, ma'am. इक्वली लाइकली है, इसका मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सेम प्रोबेबिलिटी होगी तीनों की। और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि उन 3 से ज्यादा कुछ नहीं है, उसी में से जो निकलेगा निकलेगा। तो पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा। एग्जॉस्टिव का ये मतलब होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि उन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। इक्वली लाइकली का मतलब होता है तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम बी को भी ए लिख देते हैं, सी को भी ए लिख देते हैं, तो बी ए आ गया हमारा 1/3। जब पी ए 1/3 आया तो पी बी भी 1/3 होगा, पी सी भी 1/3 होगा। और जब प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री 1 माइनस 1/3 होती है, तो 2/3। तीनों की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गई। ए की निकालनी थी, इसने ए की ही निकाली, बी की भी यही आएगी, सी की भी यही आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। अब आगे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप करोगे खुद ही। मैं 17 करवा देती हूँ आपको, मतलब मुझे तो कोई नहीं, सारे ही करा दूंगी। 16 पढ़ो, किसने पढ़ना है, 1 बाय 1 अपने आप हैंड रेस करते जाओ वॉलंटियर, और पढ़ते जाओ। जिसने ना पढ़ा हो वो पढ़े।
मनदीप आप पढ़ोगे? बताओ बेटे कौन? मैम आपकी बात नहीं क्लियर आ रही। हर्षदीप कौर पढ़ेगी। हाँ जी हर्षदीप पढ़िए 16 क्वेश्चन। A card is drawn from a pack 52 cards. What is probability that is a heart or a king? आप इसको एक्सप्लेन भी करो बेटा। वेरी गुड। मैम इसका मतलब है भी एक अपना कार्ड है 52 पैक्स का एक कार्ड है, उसमें एक कार्ड हार्ट कार्ड निकलेगा, प्रोबेबिलिटी होगी क्या, और किंग कार्ड निकलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हमने इसमें एडिटिव थ्योरम लगाई है ना। पहली बात एडिटिव थ्योरम में क्या था, हार्ट और किंग दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस मैम। और दोनों में और लग गया यस मैम। तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल। यस मैम। पर इसमें से कुछ कॉमन भी होता है, एक किंग हार्ट का होता है ना। यस मैम। तो अब हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हार्ट मैम 4/52। नहीं बेटा, हार्ट कितने होते हैं कार्ड्स में, कल बताया था आपको। हार्ट मैम 13 मैम। हाँ तो फिर क्या है? मैम 13/52। मैम आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ बेटा देखो, आपकी 13/52 हो गई। यस मैम। और किंग की क्या आएगी? किंग की मैम 4/52 आएगी, बट एक हार्ट होने के लिए माइनस हो जाएगा तो 3/52। वो तो माइनस बाद में। हाँ ठीक कह रहे हो आप। तो हमने क्या करना है, पी ए प्लस पी बी माइनस जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है। ओके मैम। 13 ओके मैम। प्लस 4 माइनस 1 आ गया ये बात समझ आपको? यस मैम। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन एडिटिव थ्योरम के हैं। आगे आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेगा आप में से कौन पढ़ेगा? कामना आप पढ़ोगे? कामना, प्रणव, यस मैम। कामना आप पढ़ो बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मैम स्क्रीन थोड़ी विजिबल नहीं है हो रही, मैम कम कम आ रही है। बेटा कईयों को तो दिख रही है, क्या करें। प्रणव आप पढ़ोगे? मैम दीप्ति, आवाज कट के आ रही है। बेटा मैं ये पूछ रही हूँ आप में से कौन पढ़ेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को? आई रीड दिस। यस वेरी गुड। हाँ जी आप पढ़ो हरसिमरन। Multiplication theorem. When it is desired to estimate the chances of the happening of successive events, the separate probabilities of these successive events are multiplied. If two events A and B are independent, then the probability that both will occur is equal to the product of the respective probabilities. We find the probability of the happening of two or more events in succession P, A and B is equal to PAB is equal to PA multiply PB when A and B are independent. हाँ तो अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की दो कंडीशंस हैं। एडिशन थ्योरम की क्या क्या कंडीशन थी? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, ए और बी आता था। अब यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कह रहा, वो कह रहा है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट है। और दूसरी कंडीशन है सक्सेसिव है। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, एडिशनल थ्योरम की भी वो पूछी जा सकती है कंडीशंस, और
मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की भी पूछी जा सकती हैं। तो इसकी दो कंडीशंस क्या आप रिपीट करोगे बच्चे? सक्सेसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। बोलिए बच्चे। हाँ जी, कौन पढ़ रहा था? हरसिमरन बोलिए बेटा, क्या दो कंडीशंस हैं इसकी? मैम एक मिनट, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। ये लो, आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है सबको अब? हाँ जी मैम। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, सक्सेसिव एंड इंडिपेंडेंट। कौन सी दो कंडीशंस हैं? सक्सेसिव एंड इंडिपेंडेंट। तो सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? एक के बाद एक। अभी हमने उसमें इकट्ठे निकाली थी ना, एक बॉल में से दो बॉल निकाल लिया, कार्ड में से एक कार्ड निकाला। ये है एक के बाद एक। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चे आप ही। In two losses of a fair coin, what are the chances of head in both? हाँ, अब दो टॉस किए आपने और अलग अलग किए। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। तो जब आपने पहला कॉइन फेंका, उसके ऊपर आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। जब सेकंड फेंका तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। तो दोनों टॉसेस में दो टॉस किए ना आपने, दो टॉस का मतलब दो बारी फेंका, इंडिपेंडेंट हो गए, टू टू हो गए, सक्सेसिव हो गए वो। ठीक है, सक्सेसिव भी हो गए और इंडिपेंडेंट भी हो गए। समझ आ गई आपको ये बात? Yes Yes, मैम। ma'am. तो फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 1/2 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल भी पढ़ो बच्चे। The probability that X and Y will be alive 10 years hence